Good afternoon, everyone. Sorry for the delay. Actually, the office has opened and the principal was busy in the office. So we are meeting again this week. Our last web lecture was on the 1st of June, and the speaker was a young scientist, Brigesh Parashar. Today, the speaker is an eminent historian, Professor Binda Paranjape from the Department of History, Banaras Hindu University, Varanasi. Ma'am, we are honored to have you here as speaker in our web lecture series, and a very warm welcome to you from the AN College fraternity. I'm happy to announce that today we are going to complete exactly 1 month since we started the web lecture series. The first one was on the 4th of May and today is 4th of June. The inspiration behind the lecture series was from our ever-dynamic principal, Professor S.P. Shahi. He gave the IQAC team of our college a free hand and all support. Under the guidance and leadership of the coordinator IQAC, Dr. Arun Kumar, the IQAC team of our college has tried to convert this period of crisis into an opportunity. We have had various speakers from diverse disciplines, and they have dealt on various aspects and issues connected with the COVID-19 pandemic, from its impact on environment to economy, world politics, to its therapeutics, development of vaccination, and also the role of technology, how it can be helpful, for example, in contact tracing, in cash withdrawals from ATM without touching the button, also the role of students during this period, and the lessons we have learned from this. Today, the topic is learning from past epidemics, a historical overview. Though the lockdown period is over, we will continue with this web lecture series as we have to live with new normals. One of them being maintaining social distance or physical distance, so we cannot have seminars in hall. I would like to invite our principal, Dr. S.P. Shahi, to formally invite our chief guest and speaker, Professor Binda Paranjape, and all the participants of this web lecture. आज एन कॉलेज द्वारा आयोजित 7वें वेबिनार की मेन स्पीकर चीफ स्पीकर बीएचयू की सुप्रसिद्ध इतिहासकार बिंदा परांजपे मैडम, आईक्यूएसी के कोऑर्डिनेटर अरुण बाबू, हिस्ट्री की विभागाध्यक्ष माला मैडम, तृप्ति जी, नुपुर जी, सीमा जी, प्रीति जी, हमारे कोऑर्डिनेशन कमेटी के सब यंग टीचर्स, हमारे कॉलेज के सभी वरिष्ठ शिक्षक, डिफरेंट पार्ट्स से जो यहाँ वेबिनार में सम्मिलित हो रहे हैं, सीनियर फैकल्टी मेंबर्स, प्यारे छात्रों, एन कॉलेज की एक परंपरा रही है, गरिमा रही है। आप सभी जानते हैं कि एन कॉलेज रास्ता दिखाने का काम करता है। इस संक्रमण के दौर में जहां लोग एक दूसरे पर शक की निगाह से देख रहे थे, सब लोग अपने घर में जान बचाने के लिए दुबक कर बैठे हुए थे। उस गंभीर घड़ी में हमारे आईक्यूएसी के कोऑर्डिनेटर अरुण बाबू, रत्ना जी और टीम ने जो धीरज बंधा कर रख करके यह कार्यक्रम शुरू करने का जो बीड़ा उठाया, उसके लिए मैं अपने टीम के लोगों को धन्यवाद देता हूं और उन सभी को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने जो ये कार्यक्रम, जो ये वेबिनार शुरू किया, उसकी देखा देखी पूरे बिहार में लोग कर रहे हैं, अब कर रहे हैं। हम लोगों ने
राजभवन या विश्वविद्यालय के किसी निर्देश आने के पहले ही हम लोगों ने ये सब कार्यक्रम किया। हमने जो भी कार्यक्रम किया, वेबिनार किया, फैकल्टी डेवलपमेंट किया, उसकी अपनी परंपरा और एक गरिमा रही है। और उसी गरिमा में, उसी कड़ी में आज हमारे पास बिंदा मैडम हैं। आप सभी जानते हैं कि आज का टॉपिक लर्निंग फ्रॉम पास्ट एपिडेमिक्स एंड ए हिस्टोरिकल ओवरव्यू है। मैडम बड़ा अच्छा समकालीन या समाजीन टॉपिक है। पहले भी पेंडेमिक आया, लाखों लोग मरे, लेकिन इसमें एक विचित्र चीज देखने को मिला। इसमें सबसे अधिक लोग विश्व के सबसे महाशक्ति सुपर पावर अमेरिका में मरे, और उसके बाद यूरोप के लोग मरे। पहले प्लेग आया, हैजा आया, भारत में भी लोग मरे। लेकिन इस बार विचित्र स्थिति हुई कि आदमी ने आदमी पर विश्वास करना छोड़ दिया। कोई घर में आ जाए, बिना कहे हुए भीतर घुस जाए, तो आपको शक होने लगता था कि हमको भी कहीं कोरोना नहीं पकड़ लिया है। इन विषम परिस्थितियों में, इस भयावह स्थिति में मानवता रही है 2 महीने। यह बड़ा ही भयावह रहा है। कल मैं एक बिहार के बड़े अफसर, जो कि आपदा प्रबंधन के प्रधान सचिव हैं, मैं वहां गया था और उनके काम को मैंने देखा कि किस तरीके से इस महामारी में उन्होंने खूबसूरती से चीजों को हैंडल किया। और उन्होंने बताया कि यह जिस तरीके से, जितनी बीमारी नहीं थी, खासकर हिंदुस्तान में मीडिया ने और कुछ लोगों ने लोगों को भयभीत करने का जो काम किया, यह इस महामारी का दुखद पहलू है। और हम समझते हैं कि हम मैडम के आज के व्याख्यान से सुनकर हम जरूर इस भय से निकलने का प्रयास करेंगे। मैं आप सभी को पुनः स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं। सामने नुपुर मैडम है, शायद मैं इनका नाम भूल गया, इनका भी अभिवादन करता हूं। आप सभी का वेलकम करता हूं। धन्यवाद। Thank you, Professor Mala Singh, who is head of the Department of History and College, to introduce the theme of the topic. मैं एक बार सबका फिर से अभिवादन करती हूँ, विशेषकर प्रोफेसर बिंदा परांजपे का, जिन्होंने अपने इतने व्यस्त शेड्यूल से हमें टाइम निकाल कर दिया। जैसा कि हमारे ऊर्जावान प्राचार्य महोदय ने कहा कि विषय बहुत ही समसामयिक, समाजीन है। वास्तव में हमने बहुत नकारात्मक सोचे इस महामारी से अपने अंदर उत्पन्न की थी, और उसमें हम एक सकारात्मक सोच की तलाश में निकले। हमारा विषय पूर्व की महामारी से प्राप्त शिक्षा, एक ऐतिहासिक अवलोकन जो है, उसका सबसे बड़ा उदाहरण हम आज यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। इतिहास तो एक निरंतर प्रक्रिया है, ये फिर लिखी जाएगी। आज का इतिहास भी लिखा जाना ही है, और जब यह इतिहास लिखा जाना है तो इस बात का विशेष रूप से उल्लेख होना है कि 21वीं सदी के प्रारंभ में जो महामारी हुई थी, उस महामारी के बावजूद भी शिक्षण यापन का कार्य कभी भी नहीं रुका था। एक इतनी अल्प सूचना में हम लोग इतने लोग एक मंच पर इतनी शीघ्रता से शैक्षणिक कार्य के लिए जुट जाते हैं, यह सबसे सकारात्मक उदाहरण मुझे प्रतीत होता है महामारी का। वैसे कहा जाए तो यह वर्ष या पूरी सदी ही महामारियों की रही है। अभी तो हम कोविड से लड़ ही रहे थे कि बीच में उम्फुन, निसर्ग सबने आके दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया। लेकिन उसके पहले देखें तो स्पेनिश फ्लू, हांगकांग फ्लू, स्वाइन फ्लू,
फिर उसके बाद सार्स, मार्स, इबोला, HIV, इस तरह से अनेकानेक बीमारियों की, महामारियों की एक श्रृंखला बन गई है पूरे 20वीं शताब्दी। पर शायद उससे हमने यह शिक्षा ही ग्रहण किया है कि आज हम सब इस कोविड का सामना करने में विश्व की अग्रिम पंक्तियों में खड़े हैं। पूरा विश्व भारत का उदाहरण दे रहा है और हम खड़े हैं और साथ ही साथ शिक्षण संस्थान का यापन का कार्य भी कर रहे हैं। हर नकारात्मक चीज का एक सकारात्मक पहलू तो है ही। मैडम ने तो बहुत शोध करके इस पर मैं आगे चर्चा करूंगी, इस विषय को चुना है। लेकिन एक चीज तो इस महामारी ने हमें बता दिया कि अगर हमें ताले में बंद किया गया, लॉकडाउन, तो हमने प्रकृति को सांस लेने का एक मौका दिया। अत्यधिक दोहन कर रहे थे हम लोग प्रकृति का। आज इस महामारी की ये बहुत बड़ी देन है कि प्रकृति ने एक पुनः लंबी सांस खींची है और हमारे आने वाली पीढ़ियां इससे लाभान्वित होने वाली हैं। इस बात को हम लोग बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते थे। वह नमामि गंगे प्रोजेक्ट जिस पर करोड़ों करोड़ों रुपए लगे थे, वो सब स्वच्छ हो चुके। ये कोविड की ही देन है। विषय तो हमें बहुत सरल प्रतीत होता है, हमें इससे शिक्षा लेनी है, परंतु जब मैंने मैडम से, वृंदा मैडम से इस पर बात किया तो उन्होंने सहमति जताने के पूर्व कहा, मुझे सोच लेने दीजिए, क्योंकि इतिहास बिना अनुमान, बिना सबूत के ऐतिहासिक बातें नहीं की जा सकती हैं और नकारात्मक से सकारात्मक बातें निकालने के लिए उस पर शोध बहुत आवश्यक है। और आज का जो मैडम का वक्तव्य होगा वह मुख्यतः शोध परक ही होगा। हमारे शोधार्थी, अभी हमारे साथ 100 से ऊपर शायद व्यक्ति, सर अच्छा से बताएंगे, 100 से ऊपर विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वहां पे। मैडम ने इसके लिए 260 है, 260 हमारे साथ जुड़े हुए हैं 260। और इन्होंने हर लेखों का अध्ययन किया। वह लेख जो एपिटाफ से होते हैं, जो जन्म लेख होते हैं, मृत्यु लेख होते हैं, या चर्चों के लेख होते हैं, सरकारी लेख होते हैं, सारे लेखालेख का मैडम ने अध्ययन करके ही अपने इस विषय पर बोलने की सहमति दी है। और इसके लिए विद्यार्थियों के लिए उन्होंने और भी विशेष सुविधा उसमें प्रदान की, जो आप लोग लेक्चर के क्रम में, उनके वक्तव्य के क्रम में सोचेंगे। तो मैडम को ही मैं इस विषय पर बोलने दूंगी, इस पर मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी। लेकिन उसके पहले, हालांकि डॉक्टर रत्नामृत ने इनका परिचय बहुत अच्छे से दिया है, पर फिर भी हमारे वो विद्यार्थी जो थोड़ी देर से जुड़े हैं, उनके लिए मैं एक छोटा सा परिचय और देना चाहूंगी। मैडम को हमने वैसे आग्रह भी किया है कि हमारे यहाँ हिंदी भाषी बच्चे ज्यादा हैं, तो आप हिंदी का सहारा ज्यादा ले तो अच्छा है। बिंदा जी 6 भाषाओं की जानकार हैं। मराठी तो इनकी बोली ही है, मराठी, कोंकणी, हिंदी, इंग्लिश, उड़िया, बंगाली, 6 भाषाओं की ये भाषाविद भी कही जा सकती हैं। और इनकी हिंदी और मराठी और अंग्रेजी में इनकी रचनाएं भी प्रकाशित, किताबें, पुस्तिकाएं भी पुस्तक भी प्रकाशित होते रहे हैं। फुल ब्राइट स्कॉलरशिप की होल्डर तो ये हैं ही। इसके अलावा और बहुत सारी लंबी श्रृंखला है इनकी उपलब्धियों की, पर मैं 2-3 चीजें बताना चाहूंगी। नहीं, बच्चों की रुचि के लिए बिंदा जी मैं बता रही हूँ। एक हमारे यहाँ एक सीरियल आया था, भारत एक छाप। यह सीरियल 5 एपिसोड का था और उसकी विषय विशेषज्ञ बिंदा जी रह चुकी हैं। इसका ज्योग्राफिकल चैनल ऑफ इंडिया पे, हिस्ट्री ऑफ गॉड पे इनकी चर्चा परिचर्चा हो चुकी है। और इसके अलावा भी एक बहुत लंबी फेहरिस्त है जिस पर मैं बहुत समय नहीं दूंगी। मैं बिंदा जी से पुनः आग्रह करूंगी कि वो, ओवर टू यू रत्ना। थैंक यू सो मच मालती, आपने बिंदा मैम के बारे में इतना बताया जो हमें जानकारी नहीं थी। एंड नाउ आई रिक्वेस्ट बिंदा मैम, everybody waiting anxiously, so without wasting time we would like to hear you.
मैं पूरे स्क्रीन पे कैसे आ सकती हूँ मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं अपने आप को एक छोटे से क्या मैं अभी हूँ इस पे? All आप of us लोग मुझे see you and you are audible also. ओके फाइन। तो बात करते हैं कि कॉलोनियल पीरियड में भारत में ऐसे क्या क्या महामारियां हुई, किस किस तरह के एपिडेमिक्स हम लोगों ने फेस किए, और उससे जो सीखना था इसका नेचर क्या था, किस तरह से हम उसको सीख रहे थे। तो उसमें मैंने ये एक सोचा कि जो पूरा डिस्कोर्स होता है कॉलोनियल पीरियड के एपिडेमिक्स का, वो घूमता है दो चीजों पे। एक कि हमारे जो कॉलोनियल उस समय के जो मास्टर्स थे, ब्रिटिश थे, वो बहुत ज्यादा हमको सुविधा नहीं दे रहे थे, हमारा ख्याल नहीं कर रहे थे, और ये एक एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज हो रही थी कि एपिडेमिक से, महामारी से बहुत लोगों की मौतें हो रही थी। अब इसमें ब्रिटिश सरकार की जो भूमिका थी वो थोड़ी सी सतर्कता की कैसे रही और क्यों रही कि 1857 का एक बहुत बड़ा एक रेबेलियन जब हुआ और लोगों ने ब्रिटिश सत्ता का इतना मुखर जब विरोध किया, तब ब्रिटिशों के समझ में आ गया कि यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं उसमें स्थानीय लोगों की सेंटिमेंट्स का अगर हम लोग ख्याल नहीं करेंगे तो यहाँ राज करना मुश्किल है। और इसीलिए एपिडेमिक्स के संदर्भ में भी या उनके जो स्वास्थ्य संबंधी कुछ जो नीतियां बनानी थी उसमें भी वो एक सतर्कता बरत रहे थे। लेकिन केवल ये उनका वहां का एक जो एक कल्चरल कॉन्टेक्स्ट उसका जो है उसको पूरी तरह से नकारा गया, बहुत हीन दृष्टि से देखा गया, और एशिया का एक हॉरर क्रिएट किया गया कि एशिया क्या है। अब देखिए कि कितनी बेवकूफी की बात है कि जो उनकी समृद्धि थी, जो उनका उस समय का एक कह सकते हैं कि विश्व में फैला हुआ अपना जो एक पावर परसेप्शन था, उसकी नींव तो कहीं ना कहीं भारत से वो जो शोषण कर रहे थे उसमें थी। लेकिन प्रचार करते हुए उसको अंडर प्ले करके ये दिखाया जा रहा था कि ये लोग इतने जाहिल और एकदम अपने जैसे होने के लायक नहीं। इसलिए वो जो डिवाइड है कि हम और वो, अस एंड देम, वो कायम रखने में कॉलेरा को सामने लाया जा रहा था। ऐसा है कि ये जो एक रेसिस्ट काइंड ऑफ परसेप्शन कॉलेरा की वजह से बन रहा था, वो केवल इंडिया के प्रति हुआ था ऐसे नहीं है। बहुत सारे जो कॉलोनाइज्ड रीजन्स है, चाहे वो अफ्रीका के हो चाहे वो साउथ ईस्ट एशिया के हो, उनके प्रति यही उन लोगों की भावना थी। तो मुझे ऐसे लगा कि एक न्यूज़लेटर का एक कोट मैं यहाँ पढ़ना चाहूंगी छोटा सा, कि in the British Empire in the 19th century, cholera was used to drive a wedge between cultures, even as British doctors improved their understanding of disease transmission and moved to a new era of medical science. मतलब जब वैद्यकीय या चिकित्सकीय जो विज्ञान था वो अपने पूरा अच्छी प्रगति कर रहा था, और उसमें जैसे कॉलेरा की हम बात करें तो उसके जो पैथोजेंस की स्टडी हो रही थी, किस तरह से वो जीवाणु है वो पानी से कैसे आते, सब एक तरफ तो वो अध्ययन हो रहा था। लेकिन उसके बावजूद ये जो एक रेसिस्ट परसेप्शन था वो भी अपने पूरा इंक्रीज पे था। So between fear of cholera and ignorance of pilgrimage practices, the British medical establishment characterized a whole culture as filthy and insensible. मतलब कोई ऐसे कुंभ मेला का उदाहरण लेके या पंढरपुर के यात्रा का उदाहरण लेके एक ब्लैंकेटेड एक जनरलाइज स्टेटमेंट किया जा रहा था कि ये लोग बहुत ही गंदे और जाहिल और इनको अवैज्ञानिक, विज्ञान से कोई लेना देना नहीं, ऐसे नहीं है। लेकिन मैं एक बात अपने
और खास तौर पे जैसे मैं बार बार कह रही हूँ कि ये मैं जो बहुत हमारे सीनियर टीचर्स हैं जो अपने आप में बहुत अध्ययन करते हैं और जानकारियां उनके लिए शायद ये आम ही होंगी, लेकिन मैं अपने विद्यार्थियों को सामने रख के कुछ बातें खास तौर पे कहना चाहती हूँ कि एक होता है मेटा नैरेटिव, कि क्या है कि ब्रिटिश है जो कॉलोनाइजर्स है, इंडियंस है वो जो कॉलोनाइज्ड है, ब्रिटिश राज्यकर्ता ज्यादा से ज्यादा अपना एक्सप्लॉयटेटिव एजेंडा चला रहे हैं और भारत का हर तरह से शोषण हो रहा है और उसमें भारत की आवाज को दबाया जा रहा है। ये एक मेटा नैरेटिव है और वो नेशनल डिस्कोर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है और मैं उसको डिनाई नहीं कर रही हूँ बिल्कुल ही। लेकिन अब समय आ गया है कि हम लोग उसके जैसे कहते हैं ना कि इन बिटवीन द लाइंस हो या जो फुटनोट्स हो, जो एंड नोट्स हो, जो अपेंडाइसिस हो, उसको भी अब ध्यान दे तो बहुत सारा एक अलग प्रकार का इतिहास सामने आएगा। और इतिहास के अध्ययन के उस दौर में आज हम हैं कि जब एक इतिहास नहीं, हम कहते हैं हिस्ट्रीज है, अनेक इतिहास एक इतिहास में समाहित है। जैसे अगर कॉलोनियल पीरियड का इतिहास कहे तो उसमें व्यक्तियों के इतिहास है, विशिष्ट प्रकार के कास्ट या कम्युनिटीज के इतिहास है, विशिष्ट रीजन्स के इतिहास है और उसके साथ साथ कुछ कुछ घटनाओं के इतिहास है। तो मुझे लगता है कि इसका जो एक व्यक्ति का पक्ष जो है कि हर व्यक्ति अपने आप में एक इतिहास गढ़ रही थी उस समय में भी, और उसका ये एपिडेमिक्स के साथ, पैंडेमिक्स के साथ और टोटल भारत की चिकित्सकीय सुविधा, सफाई व्यवस्था में जो सुधार होने की कुछ गुंजाइश बन रही थी उसमें क्या है वो देखना जरूरी है। और इसीलिए मैं एक बड़ा नाम यहाँ लेना चाहती हूँ, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का। हम सब जानते हैं कि लेडी विद द लैम्प और लेडी विद द लैंटर्न या रेड क्रॉस की वजह से हम सब उनका जो एक नर्सिंग क्षेत्र का एक बहुत बड़ा कार्य है उससे परिचित है। लेकिन एक बात समझने लायक है कि 1861 से लेके 1891 तक कंटिन्यूअसली फॉर 30 इयर्स ये महिला परसिस्टेंटली ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के साथ अपना पत्र व्यवहार कर रही थी, उनको रिपोर्ट्स दे रही थी, उनके साथ अपॉइंटमेंट्स लेके बातें कर रही थी, क्वीन को लिख रही थी। किस संदर्भ में? वो ये कह रही थी कि भारत की सैनिटरी व्यवस्था दुरुस्त करने की जरूरत है और उसकी जिम्मेदारी हमारी है क्योंकि हमारा प्रशासन है। और आप बताइए कि कई बार उसको उसमें बहुत ही निराशाजनक रिस्पांस मिला, ब्रिटिश गवर्नमेंट की ओर से बहुत उसको निग्लेक्ट किया गया। जैसे एक खास प्रसंग है कि उन्होंने बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, कलकत्ता प्रेसिडेंसी सभी से रिपोर्ट्स मांग मांग के एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट तैयार करके अपना एक मेमोरेंडम ब्रिटेन गवर्नमेंट को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को सबमिट किया था। लेकिन जब ब्रिटेन के एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के एक रिपोर्ट तैयार हुई उसमें नाइटिंगेल का जिक्र तक नहीं था। फिर उन्होंने अपने प्रयास नहीं छोड़े, फिर उन्होंने क्वीन ऑफ इंग्लैंड को लिखा और उनके धीरे 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 लोग समझने लगे कि ये एक महिला वहां लंदन में बैठ के अपने सब दस्तावेज एकत्रित करके कितने रिपोर्ट्स बना रही है और कितने प्रकार के एडवाइसेस दे रही है। जैसे उनका प्राइमरी कंसर्न डेफिनेटली अपने ब्रिटिश सोल्जर्स जो इंडिया में बेमतलब के मर रहे थे बैरक्स में। जब युद्ध में कोई सैनिक लड़के मर खप जाता है तो कोई बात नहीं भाई, उसका वो शौर्य है। लेकिन ये जो सोल्जर्स जो मर रहे थे वो बैरक्स की बहुत ही खराब सैनिटरी व्यवस्था होने की वजह से मर रहे थे। तो उसमें सुधार के लिए उन्होंने मूलतः ये रिसर्च शुरू किया, लेकिन उसको फिर वाइडन करते हुए उन्होंने तत्कालीन विभिन्न प्रकार के शहरों में, टाउन्स में, कस्बों में, गांव तक कैसे कैसे ये व्यवस्था होनी चाहिए इसका ब्लूप्रिंट तैयार करना शुरू किया। इसी का एक परिणाम है कि बॉम्बे में जो सैनिटरी ऑफिसर थे थॉमस हेवेल, तो उनको फिर नाइटिंगेल के हाथ से उनका सम्मान भी किया गया कि जो उन्होंने बम्बई की जो सैनिटरी व्यवस्था थी उसको कैसे इम्प्रूव किया और ईयरली सैनिटरी रिपोर्ट्स कैसे अधिक संजीदगी से लोग पढ़ने लगे, उसमें जो लैप्सेस रह रहे थे उसका पूरा करने की कोशिश कर रहे थे, बजटरी प्रोविजंस बढ़ने लगे। तो मुझे लगता है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल को अदरवाइज हम लोग जिस वैद्यकीय सेवा के लिए और नर्सिंग के लिए जो जानते हैं उसके अलावा हम भारतीय कॉलोनियल पीरियड के एपिडेमिक्स के संबंधित चिकित्सा और सैनिटरी सुविधाओं के संबंधित रिसर्च में भी जानेंगे। तो एक हमें कह सकते हैं कि धीरे धीरे जो विस्मृत होता जा रहा है इतिहास का एक पन्ना वो हमेशा उजागर रहेगा। एंड विल बी थैंकफुल टू हर फॉर दिस एंड देन उनसे प्रेरणा लेके और भी काम इसमें हो सकता है।
दूसरा एक नाम मैं यहाँ लेना चाहती हूँ, और ये मुझे लगता है कि जो प्रसंग है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आज भी जिसकी जरूरत भारत में बहुत अहम है, बहुत बड़ी मात्रा में इसकी जरूरत भारत में है। वो है कि ग्रेटर बॉम्बे के जो गवर्नर थे सिडनैम, जब देखा कि लोग टीका लगाने के लिए, इनॉग्रेशन के लिए जब सामने नहीं आ रहे हैं, तो एक उन्होंने अपनी एक आइडिया लगाई कि क्यों ना हम इसका प्रचार प्रसार करने में तत्कालीन जो न्यूज़पेपर्स और पत्र पत्रिकाओं का सहारा ले। तो फिर उन्होंने क्या किया कि ये जो मराठी, गुजराती, उर्दू, इंग्लिश, पोर्चुगीज, विभिन्न प्रकार के जो अखबार निकलते थे, उनके एडिटर्स को लिखा कि आप बॉम्बे बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी में आइए और वहां वैक्सीन कैसे बनता है, वो एडमिनिस्टर कैसे होता है और फिर उसके परिणाम कैसे देखे जाते हैं, इस सब को आप देखिए। और अगर आपको कन्विंसिंग लगा या आपके कोई प्रश्न होंगे, आपके मन में कोई संदेह होगा, तो उसका भी निराकरण वहां जो एक्सपर्ट्स है वो कर देंगे, और फिर उनके माध्यम से ये वैक्सीनेशन के लिए, इनॉक्यूलेशन के लिए, टीकाकरण के लिए लोगों में जनमत तैयार होगा। और बहुत अच्छी बात यह है कि 50 एडिटर्स तैयार हो गए उनके साथ लैबोरेटरी जाने के लिए, और फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन उन्होंने इन सब चीजों के लिए और अपने लोगों के साथ शेयर की। मेरे कहने का मतलब है कि अगर इच्छा हो और एक प्रकार का एक जुनून हो कि ये हमको करना ही है, तो लोगों ने उस जमाने में क्या क्या किया इसको हम देखेंगे, और फिर उससे सीख लेके आज हमारे लोगों में भी जिस प्रकार का कुछ एक हम कह सकते हैं कि नॉन साइंटिफिक एटीट्यूड कई बार दिखता है रोगों के संबंधित या महामारियों के संबंधित, खासतौर पे जैसे अभी कोरोना के संबंधित भी बहुत सारी भ्रांतियां जो फैल रही है, तो उसमें मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छी पहल ये हो सकती है कि चिकित्सकों से ये बहुत अच्छी तरह से जाना जाए और लोगों तक पहुंचाया जाए। हालांकि आजकल टेलीविजन के टॉक शोज में वगैरह डॉक्टरों को बुला के, वैज्ञानिकों को बुला के ये प्रयास हो रहा है, लेकिन वो हमारे जनसामान्यों तक नहीं पहुंच रहा है। और उनके लिए आज भी अखबार या आकाशवाणी, रेडियो, ये भी आज भी कारगर हो सकता है, और उस तरह से उसका हम लोगों ने वो प्रयास अभी करना चाहिए। और एक नाम है, और मुझे लगता है कि इसके ऋण हमारे ऊपर इतने ज्यादा है कि हम we just cannot afford to forget this person. लियोनार्ड रॉजर्स एक ये थे फाउंडर मेंबर थे रॉयल सोसाइटी फॉर ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड हाइजीन, कलकत्ता में उन्होंने इसकी स्थापना की थी। भारत में वो सिविल सर्वेंट थे, और उन्होंने उनका एक आर्टिकल बहुत आसानी से जे स्टोर में उपलब्ध है, 30 years रिसर्च ऑन द कॉलेरा एपिडेमिक। 30 years रिसर्च ऑन द कॉलेरा एपिडेमिक, ये ब्रिटिश मेडिकल जर्नल के वॉल्यूम 2 में 1957 में छपा है। क्या है इसकी खूबी? एक तो आप बताइए कि एक व्यक्ति जो हाईएस्ट पोजीशन में, मतलब उनको जब उनका सम्मान किया गया तो वो ऐसे सम्मान थे कि जो सामान्यतः गवर्नर्स को दिए जाते थे, वो सम्मान भी उनको मिले उनके इस कार्य के लिए। उन्होंने लगातार 30 सालों के या 3-4 दशकों के जो लोगों के कॉलेरा के संबंधित डेथ रेट्स, जिसको हम कहते हैं कि पर 1000 कितने लोग मर रहे हैं, कौन से साल में मर रहे हैं, साल के कौन से समय में इसको ज्यादा देखा जा रहा है, पूर्वीय भारत का सीन क्या है, हरिद्वार का सीन क्या है, महाराष्ट्र का सीन क्या है, मद्रास का सीन क्या है, और ह्यूज डेटा आप इमेजिन कर सकते हैं कि मिलियंस ऑफ पीपल का डेटा उन्होंने एकत्रित कर करके उसको अध्ययन किया। आप ये पीरियड इमेजिन कीजिए, 1957 के पहले का है, जैसे 1938 में वगैरह ये पहली बार प्रकाशित हो रहा था, तो कंप्यूटर्स नहीं थे ना, तो ह्यूमन एफर्ट का वॉल्यूम क्या है आप देख लीजिए कि इतने एफर्ट के साथ ये व्यक्ति काम कर रहे हैं। और उन्होंने दो बहुत महत्वपूर्ण उसमें हमें ये दिए, उसका रिपोर्ट्स में कंक्लूजन्स दिए। एक कि कॉलेरा के एपिडेमिक का संबंध यहाँ के ह्यूमिड वेदर से बहुत ज्यादा है, ह्यूमिडिटी से है, और खास तौर पे हमारी जो
पिलग्रिमेजेस जो आषाढ़ सावन में वगैरह जो होती है, तब इसको फैलने का बहुत बड़ा डर होता है। आज हमें ये बड़ा आम से लगता है और सामान्य लोग भी इसको जानते हैं कि जब बरसाती मौसम होता है तब ये शौच में और इसमें पेट में मुरड़ी होना वगैरह ये बहुत कॉमन है। लेकिन कॉलेरा जैसे महामारी के संदर्भ में एक विदेशी जो डॉक्टर है, FRCS भी थे वो, और उनका ये अध्ययन है। और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि इसका कारगर इलाज केवल एंड केवल मास इनोकुलेशन है, उसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है भारत में। क्योंकि उन्होंने देखा कि जहां हमारी कॉन्ग्रीगेशंस की, पिलग्रिमेजेस के ऐसे जो स्थान है या दूसरे तरह के कॉन्ग्रीगेशंस के भी, वहां सैनिटरी सुविधाएं प्रोवाइड करना इतना आसान नहीं है, या लोगों के आदतों में भी इतना एकदम सुधार करना धीरे धीरे हो जाएगा। आज लोग बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो रहे हैं सुविधाओं मतलब अपने शौच के बारे में या शुचिता के सफाई के बारे में, लेकिन उस जमाने में वो नहीं था। तो उन्होंने जो मास इनोकुलेशन की जो एक सलाह दी, और उसके लिए हम लोग देख सकते हैं कि कॉलेरा धीरे धीरे कंट्रोल होता गया है और आज उस तरह की महामारी भारत में हम एक्सपीरियंस नहीं करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा योगदान इस व्यक्ति का है। मतलब मुझे ये लगता है, देखिए आप एक बात समझिए इसमें कि एक होता है कि जो पॉलिसी मेकर्स है उनके अपने जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट है या एक एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होल्ड करने के इंटरेस्ट है, और इसीलिए वो नीतियां बनाते हैं। लेकिन ग्राउंड लेवल पे उन नीतियों का जब वो क्रियान्वयन होता है, उन नीतियों के आधार पे जब लोग काम करते हैं, तब उसके जो स्थानीय जो एडजस्टमेंट्स होते हैं वो करते हुए वो अपनी पूरी कमिटमेंट दिखा के और अपनी पूरी जितनी ताकत है, मेंटल हो या उनके इन्फ्लुएंस के, वो लगा के जब काम करते हैं तो इस तरह के वंडरफुल काम हो सकते हैं। और उसमें हम धीरे धीरे, मुझे लगता है कि ये एक मेथोडोलॉजी हमको डेवलप करनी होगी कि एक तरफ कॉलोनियल सरकार की नीतियां हैं और दूसरी तरफ उस नीतियों का ग्राउंड जीरो पे क्रियान्वयन करने वाले लोग हैं, भले वो ब्रिटिश ओरिजिन के हो, लेकिन उनका जो भारतीयों के साथ संपर्क था और इसकी वजह से, और दूसरा अपना काम करने का एक जुनून था कि उनको वो कुछ एक ऑर्डर मिला है उसको भली भांति डिस्चार्ज करना है, और उसमें जो पूरी ताकत उन्होंने जो झोंक दी है। तो लियोनार्डो जॉर्ज जो है उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण हम देख सकते हैं। सॉरी, रॉजर्स, लियोनार्ड रॉजर्स नाम है उनका। एक ट्रीटमेंट का हम लोग मैं अभी आपको वो नहीं दिखा पा रही हूँ, लेकिन आप खुद अपना देख सकते हैं, बहुत आसानी से उपलब्ध है कि प्लेग के पेशेंट्स की ट्रीटमेंट कैसे होती थी, और वो जो ब्रिटिश डॉक्टर्स थे वो कितना पेशेंट्स को केयरफुली हैंडल करते थे। उनको सुई लगाना हो या उनकी खून की जांच करानी हो, ये सब कैसे करते थे, उसके चित्र हम बहुत आसानी से देख सकते हैं। दूसरा है एंटी कॉलेरा इनोकुलेशन के लिए, जैसे हम कहते हैं कि 1894 में कलकत्ता में अलग अलग जगह पे जो कैंप्स लगाए जाते थे, क्योंकि कहा जाता है कि बंगाल पूरा केंद्र था, ओरिजिन था कॉलेरा का, और इसीलिए बड़ा बदनाम भी था बंगाल। लेकिन वहां के लोगों ने और वहां के जो ऑफिसर्स थे उन्होंने ये ठान ली कि बंगाल के ऊपर का ये दाग मिटाएंगे, और बहुत वाइड स्प्रेड पब्लिसिटी की इसकी, और इनोकुलेशन मतलब लोगों का टीकाकरण होने लगा और कॉलेरा के ऊपर काबू पाया गया। तो ये मैं कहना चाहती हूँ कि ये एक मेटा नैरेटिव से लेके एक स्थानीय स्तर के जो लोकल हिस्ट्रीज है और जो व्यक्ति केंद्रित भी इतिहास है, उसको हमें ध्यानपूर्वक देखना चाहिए। और आज हम जिनको कोरोना हीरोज कहते हैं ना, कोरोना फाइटर्स, कोरोना हीरोज, तो इस समय के वो कॉलेरा हीरोज थे इन अ वे यू कैन से, और इनकी हिस्ट्री हम लोग जान पाते हैं। अब मैं अपने दूसरे टॉपिक पे आती हूँ। हालांकि अगर मैं ये चित्र आपको नहीं दिखा पा रही हूँ तो बहुत ज्यादा उसका इम्पैक्ट होगा कि नहीं होगा पता नहीं। अरुण कुमार सर, क्या आप अभी भी नहीं पाए उसको? अरुण कुमार जी, अरुण कुमार जी, आप इसको अभी भी नहीं दिखा पा रहे? अरुण कुमार जी, अरुण कुमार जी, आप इसको अभी भी नहीं दिखा पा रहे?
आप अभी भी नहीं दिखा पा रहे उसको? नहीं? He has not been able to get it now, ma'am. Probably the file is very big. ओके ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। The तो file very big, ma'am. कोई बात नहीं, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि 15वीं, 16वीं, 17वीं शताब्दी में यूरोप में बहुत अधिक मात्रा में जो रोमन कैथोलिक चर्च की ओर से बहुत सारे पेंटर्स को कमीशन किया गया कि आप ये जो कुछ डिवाइन इंटरवेंशन, जो दैवी एक कृपा से आप विभिन्न प्रकार की बीमारियों से जो निजात पा सकते हैं, उसके चित्र बनाइए और वो लोगों को मतलब उसके माध्यम से हम लोगों पे ये बताएंगे कि इस तरह का जो महामारी का हमारा जो ये कंट्रोल मैकेनिज्म है वो कारगर हो सकता है, क्योंकि लोग फिर अधिक भक्ति करेंगे। उस तरह के जो सेंट्स है उनके प्रार्थनाएं करेंगे, उनके माध्यम से अपनी प्रार्थनाएं भगवान तक पहुंचाएंगे। तो बड़े बड़े बहुत ह्यूज फ्रेस्कोज या जैसे वॉल पेंटिंग्स हम कहते हैं, वो यूरोप में लोग बनाने लगे और उसमें विभिन्न प्रकार के खास जिसको हम कह सकते हैं एक मूर्ति विज्ञान, एक किस्म का अगर कहें तो वो ये प्लेग का एक मूर्ति विज्ञान बनने लगा था। उसका एक बहुत सुंदर उदाहरण आप लोग खुद अपने से भी इंटरनेट से देख सकते हैं। एक सेंट है जिसका स्पेलिंग अलग अलग तरीके से होता है, बट रॉचस, ROCHUS इसको हम कह सकते हैं। तो वो एक ऐसे थे सेंट कि वो खुद महामारी से प्लेग से पीड़ित हुए थे, लेकिन उन्होंने उस पीड़ा को झेला और उस पीड़ा के दौरान उनका जो भगवान के ऊपर का विश्वास था वो पूरा अटल रहा। किसी भी तरह से वो उन्होंने ये नहीं समझा कि ये मुझे क्यों इतना दर्द हो रहा है, मैं क्यों इतनी पीड़ा सह रहा हूँ। उन्होंने वो भगवान का आशीर्वाद माना और फिर उससे जब वो बहुत ही एक ऐसे स्थिति में पहुंचे कि भूखे प्यासे भटक रहे थे, बहुत वेदना और पीड़ा से गुजर रहे थे, क्योंकि प्लेग का बहुत बड़ा से प्लेग की बड़ी सी गांठ उनके जांघ में थी। और ऐसे समय में उनको एक कुत्ता, एक डबल रोटी जिसको हम कहते हैं ना, एक वो डबल रोटी लेके आया और उन्होंने उनको वो दे दिया था। तो इससे क्या हुआ कि एक आइकोनोग्राफी उसकी बनी, एक मूर्ति विज्ञान बना कि जिसमें लोग ये दिखाने लगे कि एक चिथड़े जैसा कुछ भी पहना हुआ एक बहुत ही क्षीण शरीर का एक व्यक्ति, थोड़ा सा उसका जो चीर जो पहना हुआ है वो थोड़ा सा ऊपर उठाया हुआ ताकि उसके जांघ के ऊपर जो प्लेग की गांठ है वो दिखाई दिए, और एक कुत्ता उसके साथ मुंह में डबल रोटी लिए हुए जा रहा है। तो ऐसे ये सेंट के पिक्चर्स या पेंटिंग्स हमें बहुत अधिक मात्रा में और बहुत इफेक्टिव तरीके से बनाए हुए नजर आते हैं। तो ये आप देखिए कि कैसे रोमन कैथोलिक चर्च उस समय आप देख सकते हैं कि शायद ये एक तरफ एक हताशा भी है, क्योंकि उस समय का वैद्यकीय ज्ञान जो था वो नहीं हेल्प कर पा रहा था और लोग पीड़ा से निजात नहीं पा रहे थे। तो उनको प्रार्थना करने के अलावा शायद हाथ में कुछ नहीं ऐसे लग रहा था। दूसरा, लोगों का विश्वास भी ऐसी विकट परिस्थिति में कायम रहना भी जरूरी है, तो ही पोप की और ये कैथोलिक चर्च की संस्था चलेगी। अगर लोगों का विश्वास उठ गया तो वो संस्था नहीं चलेगी। और इसीलिए बड़े इफेक्टिव तरीके से, जिसका एकदम तुरंत मनोमस्तिष्क पे एकदम इम्पैक्ट हो जाए, ऐसे चित्र बना बना के प्रस्तुत करना, ये उनको उस समय ठीक लगा। जैसे प्रोसेशन ऑफ सेंट ग्रेगरी द ग्रेट, ये एक रोमन पोप 6वीं शताब्दी के थे,
और कहा जाता है कि अपने लोगों को प्लेग से निजात देने के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा लोगों का एक जैसे कहते हैं ना एक शोभा यात्रा की तरह, एक झांकी की तरह बनाया और सबको लेके कैथेड्रल में गए और फिर उन्होंने वहां एक विशेष प्रार्थना की और अपने लोगों को प्लेग से निजात देने की कोशिश की। तो उससे ये हो जाता है। मेरे ख्याल से मेरा टाइम अप हो रहा है क्या, या मैं अभी थोड़ी देर और बोल सकती हूँ? बोल सकती है मैडम। ओके, थैंक यू। तो ये डेविड ये जो ग्रेगरी का द सीनियर ग्रेगरी द ग्रेट जिसको कहा जाता है, उसके प्रोसेशन का चित्र आप जरूर देखिए कि आप देख सकते हैं कि कैसे पूरे शहर के लोग एक मालिका बना के वो चर्च की तरफ जा रहे हैं। मुझे लगता है इन चित्रों को देख के हम लोग उस समय के लोगों की जो एक मानसिक स्थिति है इसको भी समझ सकते हैं, और वहां से लेके आज के वैज्ञानिक तरीकों से, हॉस्पिटलाइजेशन से, वैद्यकीय चिकित्सा लेने से, डॉक्टर्स का परामर्श लेने तक, ये जो हमने प्रवास किया है, पूरे मानव समूह ने, मनुष्य ने जो एक प्रवास किया है, उसको देखने का एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है। उस समय बहुत सारे ऐसे तावीज भी बनते थे। उस तावीज को एक छोटे से कागज पे या कपड़े पे पेंट किया जाता था, जिसमें आसमान पे भगवान को दिखाया जाता था, बीच में जीसस क्राइस्ट या मदर मेरी को दिखाया जाता था, नीचे क्रूस दिखाया जाता था और उसके अगल बगल कुछ सेंट्स को दिखाया जाता था। ऐसे सेंट्स की जो लोगों की प्रार्थना जो है वो आसमान में भगवान तक पहुंचाएंगे, और फिर उसको रोल करके एक तावीज में डाल के फिर वो तावीज को शरीर पे बांधा जाता था। तो तावीजों की परंपरा तो आशियाई परंपरा भी है। हम लोग तो बहुत सारे तावीज, आज भी भारत में लोग तावीज लगाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये कंटिन्यूटी जो है कल्चरल ट्रेडिशन की, वो हम इसमें देख सकते हैं। और इसका हमें एक लाभ ये होता है कि वैश्विक स्तर पे कैसे हम सब लोग, at the end of the day we are all humans and we have got so much in common, we have got so much to share। ये एक हाईलाइट इससे होता है, इसलिए तावीज मुझे लगा ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक प्रसंग है जो ये जो प्लेग के संबंधित जो पेंटिंग्स बनते थे उसका एक महत्वपूर्ण विषय है, और ये हमें कुछ एक बुनियादी सिविलाइजेशनल डिस्कोर्स तक ले जाता है। प्लेग इसका एक कारण हो रहा है, लेकिन कैसे होता है हम देखते हैं इसको कि आप अब्राहमिक ट्रेडिशन जो है क्रिश्चियन संतों की, तो उसमें एक डेविड है। इजराइल की भूमि पे उसका राज था, जेरूसलेम का वगैरह एरिया उसके अंडर था। तो ये डेविड ने एक बार अपने राज्य में अपने लोगों का सेंसस करने की ऑर्डर दी, जनगणना कितने लोग हैं। तो उसका जो मंत्री था उसने कहा कि महाराज आप ये क्या कर रहे हैं, आप क्यों जानना चाहते हैं कि आपके अंकित कितने लोग हैं? कहीं आपका अहंकार तो नहीं इसमें बढ़ चढ़ के बोल रहा है? क्योंकि हम तो सब हम जो भी है, हम एक शासक के रूप में है, वो तो भगवान की दया से है। लेकिन डेविड ने उसकी सलाह नहीं मानी और अपने लोगों का सेंसस करवाया। अब देखिए कि आज जब हम प्रति 10 वर्ष में सेंसस करा रहे हैं, और सेंसस नाम की कोई चीज किसी के लिए इतनी पाप पुण्य की चीज हो सकती है, इसके बारे में हम सोचते भी नहीं है। लेकिन डेविड का सेंसस पाप पुण्य की एक बहुत बड़ी एक्सक्यूज बन गई, और देवदूत आके उन्होंने डेविड को कहा कि ईश्वर तुमसे बहुत नाराज है, तुमने ये क्या कर लिया, तुम्हें क्यों जानना है कि तुम्हारे अंकित कितने लोग हैं? जितने भगवान की मर्जी होगी उतने लोग तुम्हारे अंकित रहेंगे, तो अब तुम्हें इसका प्रायश्चित करना होगा। और भगवान ने तुम्हारे लिए पनिशमेंट के 3 ऑप्शंस दिए हैं। एक ऑप्शन है कि तुम्हारे राज्य में 3 साल तक लगातार युद्ध होते रहेंगे। एक ऑप्शन है कि 3 महीने के लिए तुम्हारे राज्य में पूरे अकाल हो जाएगा, और एक ऑप्शन ये है कि 3 दिन के लिए तुम्हारे लोग मतलब उनके ऊपर प्लेग की महामारी आ जाएगी। तो डेविड को ये लगा कि 3 दिन वाला तो ठीक ही है, तो उसने भगवान से नेगोशिएट किया कि अच्छा ठीक है, वो 3 दिन जो महामारी का है वो पनिशमेंट आप मुझे दीजिए। तो फिर भगवान ने आसमान से, वो एक सिंबॉलिकली दिखाया जाता है कि भगवान के जो दूत होते हैं वो काले रंग के एरोज जो है, बाण जो मारने लगते हैं सब, और
नीचे वो पेंटिंग बड़ा इफेक्टिव तरीके से है कि नीचे लोग एकदम त्राही त्राही हो रहे हैं, एकदम हाहाकार फैला हुआ है। और कहा जाता है, मतलब ये एक बिब्लिक तरीका है कहने का, सचमुच वहां की कितनी आबादी थी और इतना हाई नंबर हो सकता है कि नहीं हो सकता है पता नहीं, लेकिन कहा जाता है कि 7 लाख लोग 3 दिन में प्लेग से पीड़ित होकर मर गए। और तब डेविड ने फिर भगवान से प्रार्थना की कि अब तो हो गया, 3 दिन हो गया, अब मेरे लोगों को बचाओ। और फिर एक चित्र है कि जिसमें भगवान देवदूत को कह रहा है कि अच्छा ठीक है, अब एरोज मारना, बाण मारना बंद कर दो। अब सवाल ये है कि जो मैं कह रही हूँ कि इस प्लेग के पेंटिंग्स के बहाने हम किस तरह का एक सिविलाइजेशनल डिस्कोर्स सामने ला रहे हैं। आप किसने किया? राजा ने किया। वो राजा कौन था? भगवान का बड़ा सेवक था। और भगवान के एक बड़े सेवक ने, बड़े आस्थावान व्यक्ति ने जब सेंसस किया तब उसको, उसका अहंकार माना गया और भगवान ने उसको पनिशमेंट दे दी। लेकिन उसको थोड़े ना पनिशमेंट मिली। पनिशमेंट तो उन, अब 7,000 थे या 70,000 थे या 7 लाख थे, मिली तो उनको ना। तो क्या हम देख रहे हैं इसमें कि ये जो एक सर्वशक्तिमान और सभी प्रकार के पाप पुण्य का जो हिसाब है, वो उस समय के जो राजा है या जो नियंता है, मतलब आसमान में भगवान और पृथ्वी पे राजा, ये जो एक किंगशिप का जो एक मॉडल है, वो हमें इस प्लेग के महामारी के संबंधित जो बिब्लिक रेफरेंसेस है उससे दिखने लगता है। और वहां से लेके आज तक जहां हम एक जनतांत्रिक लोकतांत्रिक व्यवस्था तक आ गए, देखिए हमने कितना बड़ा प्रोग्रेस किया है, हम कहाँ तक आए। और आज हम ये क्वेश्चन जरूर पूछ सकते हैं कि डेविड के सिंह की पनिशमेंट उसके लोगों ने क्यों सहन की, क्यों उनको सहना पड़ा। और फिर जाके हम लोग देखते हैं कि कैथोलिक चर्च में, और बाद में तो प्रोटेस्टेंट्स ने तो ये सब चीजों को बहुत ही पलट दिया, तो उसमें धीरे धीरे विचारों के परिवर्तन आने लगे। दर्शन में एक विभिन्न प्रकार की विधाएं इसमें विकसित होने लगी। और ये जो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एक फॉर्मूला है कि जो राजा का पाप है वो प्रजा का पाप है, और राजा का पुण्य है वो प्रजा का पुण्य है, और इसलिए वो इन महामारियों से पीड़ित हो जाएंगे, ये धीरे धीरे बदल गया। अब एक दूसरे सेट ऑफ पेंटिंग्स की मैं बात करना चाहती हूँ कि 20वीं शताब्दी में आते आते महामारियों से जो ये लोग जो पीड़ित हो रहे थे, वो एक बड़ा पेंटर्स के लिए भी एक ऐसा विषय हो गया कि उनको ये लगा कि ये त्रासदी ऐसी है जो पूरी मनुष्य जात को इतनी डीपली हर्ट कर रही है, और इन ट्रेजेडीज को वो अपने अपने तरीके से दिखाने लगे। तो आप लोग प्लीज इंटरनेट पे जरूर ये देखिए कि एक एडवर्ड मंच नाम के एक स्पेनिश नॉर्वेजियन आर्टिस्ट थे, और वो खुद पीड़ित हो गए स्पेनिश फ्लू जो कहा जाता है, इन्फ्लुएंजा से। और फिर उन्होंने अपना जो रुग्ण पूरा शरीर है उसको सेल्फ पोर्ट्रेट बना दिया और दिखा दिया कि शरीर कितना कमजोर दिख रहा है, स्किन कितनी पेल हो गई है, आंखें धस गई है, गाल के हड्डियां सब ऊपर उठी है। और वो चित्र देखते ही एक करुणा आ जाती है इस व्यक्ति के प्रति। तो ये पेशेंट की जो अवस्था हो रही है वो एक पेंटिंग का विषय बन रहा है, और उसमें हम लोग तुरंत देख सकते हैं कि ये पीड़ा, हालांकि उन्होंने अपनी खुद की पीड़ा अपने सेल्फ पोर्ट्रेट में दिखाई, लेकिन वो व्यक्ति और पूरा समाज, इसका एकत्रित एक मिला जुला ये इम्पैक्ट हम उस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। दूसरा जो है वो बहुत ही इमीडिएटली टेक्स डीप इनसाइड यू, और एक हर्ट हम फील करते हैं उसमें अपने हार्ट में। वो एक ऑस्ट्रियन पेंटर थे, ईगॉन या इजॉन शेली उनका नाम है, और 1918 में उन्होंने बनाई हुई एक पेंटिंग है। पेंटिंग का टाइटल है द फैमिली। तो आप द फैमिली 1918 इतना भी टाइप करेंगे तो गूगल में भी आपको ये चित्र देखने को मिलेगा। इसमें ये भी एक किस्म से सेल्फ पोर्ट्रेट है कि खुद पेंटर है, उनके आगे उनकी पत्नी है, और उनके आगे थोड़ा सा एक शिशु का चेहरा दिख रहा है। अब ये क्या है कि जस्ट इस पेंटिंग के कुछ समय पहले उन्होंने एक पत्र लिखा था, उसमें लिखा है कि मेरी पत्नी 6 माह की ये है, गर्भावस्था में है और वो इन्फ्लुएंजा से पीड़ित है।
और अब मुझे लग रहा है कि मुझे किसी भी अनहोनी के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। और वास्तव में उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई और 3 दिन बाद उनकी भी मृत्यु हो गई। और ये जो उन्होंने चित्र बनाना शुरू किया था जिसमें वो खुद अपने को दिखा रहे, पत्नी को दिखा रहे और एक छोटे से शिशु का चेहरे का पोर्शन दिखा रहे, वो वैसे इनकम्प्लीट रहा। लेकिन आप देखिए कि तुरंत एक आर्टिस्ट हमें उस ट्रेजेडी की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित कर रहा है कि जब ये महामारियां होती है तब जो व्यक्ति वो मर जाते हैं, उनके परिवार जो हताहत हो जाते हैं। अब देखिए कि ये अनबॉर्न तक अभी जो इस आया ही नहीं है इस पृथ्वी पे, उसको भी वो पीड़ित हो रहा है एक। और दूसरा, इस खुद व्यक्ति की अपनी नेचुरल एक जो वात्सल्य भाव है वो देखिए कि मैं मेरे बच्चे को नहीं देख पाऊंगा क्योंकि वो इस जन्म ही नहीं लेगा, वो गर्भावस्था में ही मर जाएगा, मेरी पत्नी तब मर जाएगी। तो ये जो एक पीड़ा है और इसका जो एक डायनामिक्स है वो कितना सहज रूप से इस पेंटिंग के द्वारा सामने आता है। और इसमें विभिन्न प्रकार के हमारे जो झकझोर देने वाली मानवीय जो संवेदना है वो तुरंत सामने आती है। उस समय बहुत सारे कैरिकेचर्स एंड कार्टून्स भी बन रहे थे, आप जरूर उसको देखिए, बहुत आसानी से आपको उपलब्ध हो जाएगा। कॉलेरा डॉक्टर एंड कॉलेरा पेशेंट नाम के आपको तुरंत कार्टून्स दिखाई देंगे। तो उसमें क्या है कि एक डॉक्टर है, एक बड़ा सा केक नुमा पदार्थ लेके और उसका बड़ा सा एक चंक काटे हुए लेके खाने की तैयारी में है, और उसके आसपास वो जो दवाइयां देते हैं उनके जार्स रखे हुए हैं। कहने का मतलब है कि बहुत लोग ये समझते थे और उसके ऊपर कड़ी आलोचना भी हुई थी कि कॉलेरा के दौरान बहुत डॉक्टर्स ने खूब कमाई की, लोगों को इधर उधर की दवाइयां देके और खुद अपने वो अमीर होते गए। तो ये आप सर कुछ कह रहे हैं? तो ये जो कॉलेरा डॉक्टर करके कैरिकेचर है वो देखने लायक है। और उसी तरह से कॉलेरा पेशेंट जस्ट उसके उलट है कि पूरा उसका शरीर बहुत दुर्बल हो गया है और उसके सामने केवल कुछ नहीं, जार्स एंड टिन्स फुल ऑफ ये है पिल्स है, दवाइयां हैं, और उसके टेबल के नीचे उल्लू नुमा एक बहुत डरावना सा जीव है कि वो उसको अब खाने वाला है, वो उस रोग में मरने वाला है। तो ये जो डॉक्टर और पेशेंट के उस समय के जो हालात थे और जैसे डॉक्टर्स उनको एक्सप्लॉइट कर रहे थे उसका एक कैरिकेचर है। एक दूसरा भयानक मतलब एक तरफ से बड़ा ह्यूमरस है और एक तरफ से बड़ा संजीदगी से देखने लायक का चित्र है। वो प्रीमैच्योर बरियल नाम का एंटोनी जोसेफ का एक बेल्जियन आर्टिस्ट है, उनका 1854 में किया हुआ एक पेंटिंग है जिसमें बहुत सारी ये जो शवपेटिकाएं पड़ी है और एक शवपेटिका से एक आदमी उस शवपेटिका के ढक्कन को खोल के बाहर आने की कोशिश कर रहा है। तो वो एक प्रीमैच्योर बरियल करके, क्योंकि कई बार ये होता था कि इतने अधिक संख्या में लोग मर जाते थे कि जो पूरी तरह से मरे भी नहीं है उनको भी दफनाया जाता था या दफन के लिए ले जाते थे। इससे मुझे हिंदी बेल्ट की एक बहुत पॉपुलर 1905 में छपी हुई कहानी याद आती है, प्लेग की चुड़ैल। उसमें भी एक महिला को मृत समझ के ऐसे ही गंगा में बहा दिया होता है और फिर वो किनारे पे जब आ जाती है तो उसको चुड़ैल करार दिया जाता है वगैरह। बहुत ही टच करने वाली एक कहानी है। यहाँ के एक भगवान दास मिर्जापुर के ही वो लेखक थे, उनकी 1905 की प्लेग की चुड़ैल है। तो ये चित्र देखते हुए मुझे प्लेग की चुड़ैल की याद आ रही थी कि उस जमाने में कॉलेरा से ऐसे हो रहा था। उसके अलावा हमें बरियल्स दिखते हैं जहाँ कॉलेरा के एक बादल नुमा कुछ एक एंटिटी को गाड़ दिया गया है और उसके बरियल्स तैयार किए गए, उनके ऊपर क्रूस लगाया गया है। दूसरा, उसके कैरिकेचर भी 1832 में एक जॉन बुल कैचिंग द कॉलेरा नाम का एक चित्र आपको कैरिकेचर देखने को मिलेगा। यहाँ जॉन बुल है वो ब्रिटिश शासन का एक मतलब उसको सिंबॉलिकली दिखा रहा है और एशियन मतलब ये जो डार्क स्किन्ड एक पर्सन है, दुबला पतला सा सफेद सा केवल छोटा सा वस्त्र, सर पे पगड़ी बंधा हुआ और उसकी गर्दन मरोड़ते हुए ये जो एक ब्रिटेन की ताकत को दिखाया गया है। इसी तरह से 1831 का एक ब्लैक क्लाउड का एक चित्र है जिसमें एक
फ्लोटिंग फिगर की तरह आसमान से उड़ते हुए एक बादल को दिखाया है, जिसके हाथ लंबे लंबे नाखून के ऐसे बाहर आए हुए हैं, या पैर के नाखून सब बाहर आए हुए हैं, और वो एक स्केलेटन नुमा कुछ चीज है। तो ये एक उस समय भ्रांति थी कि कॉलेरा हो, प्लेग हो, ये कुछ एक ऐसे बादल नुमा किसी चीज से उतरते हैं जमीन पे और फिर उसका प्रचार प्रसार होता है। तो वो पेंटिंग्स में हमें दिखता है। एक प्लेग ऑफ अश्टोड करके एक चित्र है, ये मेरी सेकंड लास्ट स्लाइड थी, आप नहीं देख पाएंगे। अब मैं उसको आपको डिस्क्राइब करके ही बताती हूँ कि प्लेग के समय जो लोग भयानक अधिक मात्रा में सब मर के इधर उधर गिर रहे थे, एक बड़ा ही टची चित्र है कि एक महिला जमीन पे लेटी हुई है, स्वाभाविक दिख रहा है कि वो अब जीवित नहीं है, और एक छोटा सा शिशु उसके स्तन को अभी भी खींचने की कोशिश कर रहा है, बहुत छोटा शिशु। जब मैंने ये पेंटिंग देखा तब मुझे तुरंत हमारी जो अभी अभी जो घटना मुजफ्फरपुर के रेलवे स्टेशन की सबने देखी होगी वो याद आई, कि एक महिला मृत होके पड़ी है और उसका शिशु जो है, बालक जो है, वो उसके ऊपर की चादर हटा हटा के उसको उठाने का शायद प्रयास कर रहा है, कि उसको ये पता ही नहीं चल रहा है कि उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि चाहे वो 19वीं शताब्दी हो, चाहे वो 17वीं शताब्दी हो, चाहे वो 18वीं शताब्दी हो, चाहे वो 2020 का मुजफ्फरपुर हो, ट्रेजेडीज जो है, जो व्यक्तिगत लेवल की ये ट्रेजेडीज है, वो हमेशा एक ही तरह की संवेदना से हमें झकझोर देती है। और उससे हमें ये देखना चाहिए कि पूरी विश्व के मानव को अगर हम लोग एकत्रित आके इसके फाइट में एकत्रित होके और सबके प्रति एक संवेदना रख के आगे नहीं आएंगे, तो ये चित्र, चाहे वो अश्टोड के प्लेग का चित्र हो 17वीं शताब्दी का, चाहे ये मुजफ्फरपुर के रेलवे स्टेशन की अखबार की तस्वीर हो, ये रिपीट होती जाएगी। और अगर हमें कोई सीख लेनी है तो ये पूरे मेरे आज के इस वक्तव्य में मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो ट्रेजेडीज है उसको मास नंबर्स में केवल हम ना देखें, हर व्यक्ति की भी ट्रेजेडी उतनी ही डीप है, और उसके जो परिणाम है, दुष्परिणाम है, वो जैसे कि उस पेंटर ने दिखाया कि उसका बालक जो अभी इस दुनिया में आया भी नहीं और वो मृत हो गया। तो इसका मतलब ये पीढ़ियों तक चलने वाली ये जो हानि है उसके प्रति हमारी एक डीप संवेदनशीलता रहनी चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। आपने बहुत ही सरल तरीके से हमें जो भी एपिडेमिक्स इस कोविड-19 पैंडेमिक के पहले जो आए, कॉलरा के माध्यम से आपने बताया कि हाउ in spite of like it was an epidemic, but apart from that, through this epidemic we could also see the society of that time, how the Europeans were trying to show their superiority, racist perception could be seen through this. Then you told us about plague and about Spanish flu, and how different sources also throw light on these times, and how the paintings also depict the tragedies of the time. And you related all these epidemics with the present pandemic, and from these tragedies that we have had and also from the present one, we should learn a lesson that everybody should be one in fighting it, show sympathy and empathize with others, and should not stigmatize the people who have got this disease. So thank you so much. Now there'll be an interactive session. Anyone who wants to ask any question can put up their questions, please. Kindly raise your hand before you ask the question so that you can be unmuted. Yes. May I ask a question, Ratna? Yeah, sure. Good afternoon, ma'am. Thank you for the wonderful talk. I'm Seema Prasad from the English department.
history has given us many experiences, examples, but today still we find ourselves in the same devil in the deep sea situation. So where do you think the fault lies as a historian? Fault is probably too big a word, because there can be small slips also, or there can be some bigger designs of some policymakers also. But I feel that the lack of coordination certainly is one of the major issues today. What we are planning for the people, in a sense, like if we go by our own structure of government, like there is something, the decisions by the central government, and there are certain decisions by the state governments, and then there are executives which are actually working it on ground level, as I said. So this coordination or lack of coordination, intentional or otherwise, that I think is one of the major challenges that we need to face, and then overcome the difficulties which are there in this network of communication. People are not open, people are not frank to each other, they're not sharing enough with each other. And because of that, many of the tragedies, I think that probably could have been avoided, um, just went on happening. Say, for example, the last scene that I said about the woman who died on the platform, and that child being there. But immediately, where were the people to come forward to give a helping hand, and then also pursue the matter that exactly how this tragedy has happened? I mean, later on, we have got a lot of announcements about who will do what for the child and all that. But the very loss of life is a permanent loss. And that could have been probably avoided. I mean, I know fatalists would say that no, her death was like already predestined, and what could we do about it? But I mean, we can't just leave things at this fate like that. No, I mean, then where is the human effort? Thank you, ma'am. Like ma'am, like we learn from the past epidemics, but every epidemic or every pandemic is different. For example, like pandemic which we have right now, COVID-19 pandemic, we have absolutely no vaccination regarding it. So either the solution is herd immunity or to develop a vaccine. Herd immunity would mean that a lot of people would be affected by it, and there might be a lot of mortality. But vaccination, when it is going to come, is also like nobody knows about it. What do we learn from the past when each and every epidemic and pandemic is different from each other? Yeah, it's a very good question, and certainly historians will not take a all-knowing kind of stand here. But certainly there are issues like each individual to her or his own position gives the best to do whatever can be done in this situation, and immediately without wasting time. That lesson we have to learn. Say, for example, I'm saying that when it was the spread of cholera from India to initially to Makkah, and from Makkah then, because of the Islamic followers from different regions of the world coming to Makkah, from Makkah then to different places, especially to Europe, and then finally to America. World community was telling the British government to take strict measures about it. But the British were avoiding doing that because they did not want to hurt the sentiments of the Muslims in India, and the population number-wise, numerically, was very high of the Muslims under the British rule, and then the British could not have afforded having their disrespect towards the government. So they were delaying it. Now that delay caused so much of deaths. So I think here now at once I have to act to the best of my ability. That message certainly we can take from the past epidemics. Thank you. Anybody else?
All right, we have no more questions. Then, कृष्णा सिंह करके कोई एक हाथ दिखा रहे हैं. all right, Dr. Krishna Singh, do you want to ask a question? Yes, sir, please unmute her. Dr. Krishna Singh. Yes, उनको अनम्यूट किया हुआ है. you have been unmuted, Dr. Singh. Yes, I am unmuted. Kindly ask the question. हेलो. Yes, Krishna Singh. हेलो. हेलो. पूछिए मैडम. Dr. Krishna Singh, please ask your question. हाँ मैडम, मैं ये जानना चाहता था कि हेलो. हाँ, मैं सुन रही हूँ. हाँ जी, प्रणाम मैडम. कि मतलब जो ऐतिहासिक प्रत्यक्ष हैं आपने बताए वो बहुत अच्छा रहा. तो हम लोगों को जो सबक लेना चाहिए उसमें, जैसे नागरिक समाज जो है उनकी क्या भूमिका होनी चाहिए इसमें? हाँ, ये एक अगर हम पास्ट एपिडेमिक्स को देखेंगे जो ऐतिहासिक काल में जो हुए थे, तो उसमें धीरे धीरे प्रशासन के समझ में आने लगा था कि लोगों की सहभागिता अगर नहीं होगी तो कोई भी नीति का क्रियान्वयन बहुत अच्छी तरह से नहीं हो सकता है. तो लोगों की सहभागिता, लेकिन लोग कहने से क्या होता है कि एक हेटेरोजीनियस, एक विविधांगी बहुमुखी एक समूह होता है. तो किसी को उसकी लीडरशिप लेनी होती है, और जो ज्यादातर प्रशासकीय लोगों के जो अधिकारी होते हैं उनको उसकी लीडरशिप लेके लोगों का एक सम्मिलित एक एड्रेस सिस्टम कुछ डेवलप करना पड़ता है. और फिर वो उसको जो सूचनाएं संप्रेषित होंगी, जो डायलॉग होगा, जो उनकी कठिनाई या समझ के उसमें मॉडिफिकेशन जो करना होगा, ये सब संभव हो पाएगा. और उस तरह से जन सहभागिता जो है वो बढ़ाई जा सकती है. ये ब्रिटिश पीरियड में लोगों ने बहुत अच्छी तरह से देखा. इसीलिए मैंने वो सिडनैम का उदाहरण दिया कि उन्होंने क्या किया कि लोगों को पहले बैक्टीरियोलॉजी लेबोरेटरी में बुलाया, दिखाया कि वैक्सीन कैसे बनती है, उसका हाउ इट इज एडमिनिस्टर्ड, कैसे वो दिया जाता है एंड ऑल दैट, और फिर लोगों में उसका प्रचार प्रसार करने के लिए कहा. तो ये एक भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है प्रशासन की, प्रशासकीय अधिकारियों की, कि वो लोगों के जो बिखरा हुआ जो समूह होता है उसको किसी एक उद्देश्य से एकत्रित लाएं और फिर उनसे संवाद करें, और फिर संवाद से सहभागिता निश्चित रूप से बढ़ेगी. Anybody else would like to ask? मेरे ख्याल से लोगों को भूख लगी है. Yes, विक्रम जी. मेरा क्वेश्चन. विक्रम जी. कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं. विक्रम रंजन सर, काइंडली अनम्यूट हिम. देखते हैं. हेलो. हाँ, आस्क योर क्वेश्चन. यस मैम. विश्व में जितने भी इससे पहले जो महामारियां फैली थी उसके बाद क्या बदलाव हुए थे मैम, और अब जो फैली हुई है तो क्या बदलाव होंगे? जो हम लोग स्वास्थ्य के प्रति, विश्व के बहुत सारे लोग या हम लोग भी चिंतित नहीं थे, तो अब क्या हम लोग स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहेंगे मैम? ये तो निश्चित रूप से होगा. और विश्व में जो पहली महामारियां हुई थी उसमें क्या बदलाव आए उसके हमारे पास बहुत अच्छे दस्तावेज उपलब्ध है. से फॉर एग्जाम्पल यही जो मैंने कहा कि अगर तीर्थ यात्रा में कोई जा रहे हैं, पिलग्रिम्स जा रहे हैं, जैसे कुंभ मेला में जाएंगे या हज की यात्रा में जाएंगे कि क्या है, तो उनका कंपलसरी इनोकुलेशन. पहले ये बात हमारे मतलब अगर हम लोग 19वीं शताब्दी के प्रारंभ की बात करें तो टोटली अनहर्ड ऑफ था, किसी को इसकी जानकारी नहीं थी. लेकिन धीरे धीरे लोग इसके बारे में सचेत होने लगे. गवर्नमेंट्स ने इसके प्रति बहुत ही सतर्कता दिखाई धीरे धीरे, और फिर मास इनोकुलेशन होने लगा और इसके लिए महामारी एक काबू में आई. दूसरा, जो विभिन्न प्रकार के ऐसे जो पब्लिक स्पेसेस होते हैं जहां से महामारियां फैल सकती है, वहां विभिन्न प्रकार की जन सुविधाओं का ज्यादा ये होने लगा. मतलब द स्टेट स्टार्टेड प्रोवाइडिंग इट मोर एंड मोर, सो दैट
ये जो महामारियों का स्प्रेड है उसको कंट्रोल किया जा सके। तीसरा जो है कि इसको एकदम सबसे निचले मतलब स्कूली स्तर से लेके विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रमों में उसको स्थान देके एक अवेयरनेस बढ़ाने की कोशिश होती रही। तो मेरे ख्याल से बदलाव तो बहुत हुआ। अब केवल ये ईश्वर ने हमारे तरफ भेजा हुआ कुछ एक हमारे पाप का ये कोई पनिशमेंट है और उसको हमें स्वीकारना है, ये भाव तो नहीं रहा ना। तो ये बदलाव तो होते रहते हैं। और अभी कोविड के बाद में भी बहुत सारे इस तरह के हमारे जो पर्सनल हैबिट्स जो हमारी है उसमें जरूर बदलाव आएगा और हम लोग बहुत ज्यादा सतर्क होते जाएंगे चीजों के प्रति। और फिर उस तरह से जो आवश्यक बदलाव, जैसे कई कई जगहों में आजकल आप टेलीविजन में रिपोर्ट्स में देखते होंगे कि किसी वास्तु में अगर आप प्रवेश कर रहे हैं तो प्रवेश करने के समय ही आपको पूरी तरह से आपका शरीर डिसइंफेक्ट हो जाए, इसलिए आपके ऊपर विभिन्न प्रकार की कुछ फव्वारे छोड़ दिए जाते हैं या कुछ किया जाता है। या अगर जैसे हम साउथ कोरिया के यूनिवर्सिटी का उदाहरण देखेंगे कि यूनिवर्सिटी तो खुल गई लेकिन वहां छात्रों को पूरा कतारबद्ध करके पहले उनका एंट्री पॉइंट में ही फिर से एक बार देखा जाता है वो स्वस्थ है कि नहीं है या उनमें कोई लक्षण तो नहीं है ना, और फिर वो उन्होंने मास्क लगाया है कि नहीं और सैनिटाइजर, ये सब व्यवस्था देख के ही फिर उनको विश्वविद्यालय के परिसर में प्रवेश दिया जाता है। तो ये सब बदलाव तो होंगे ही ना। हर महामारी कुछ ना कुछ सिखाती है और उससे हम आगे बढ़ते हैं और कुछ सीखते हैं। हाँ, एक है कि बजटरी प्रोविजंस जो है बहुत अधिक मात्रा में अब स्वास्थ्य चिकित्सा और सफाई की तरफ होनी चाहिए। अब भारत जैसे विकसनशील राष्ट्र में वो कितना संभव हो पाएगा, क्योंकि पूरा विश्व का ही आर्थिक अभी जो तापमान है वो बढ़ा चढ़ा हुआ है, तो पता नहीं कहाँ कितनी सुविधाएं मिल पाएंगी। मैम, जस्ट टू ऐड टू दैट, वो जो आपने प्रश्न किया विक्रम, न्यू नॉर्मल्स जो हम लोग आजकल सुन रहे हैं, नया सामान्य, तो अब हमारा रहने का तरीका भी अब हमें बदलना होगा, क्योंकि ये अभी कुछ वर्षों तक चलने वाला है। जैसे यूज ऑफ सैनिटाइजर, हाथ हमेशा धोना, सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, तो ऑल दीज वी हैव टू लर्न एंड वी हैव टू लिव विद इट। सही बात। Any other question, please? All right, Arun sir, I invite you to give the vote of thanks. He is our coordinator, IQAC, and under his guidance, all these lectures are being taken place. So please. Hello, Ratna. Hello. Yes. I'm sorry, I was raising my hand, but perhaps you did not see this, Rakesh here. Yeah, you want to ask a question? Yes, just wanted to know a simple question कि बिहार और यूपी में पिछली बार ये एपिडेमिक कब आया था और कौन सा था? Just ask from my side, just a simple question. ये बिहार और यूपी में, I mean, your speaker was talking about Bengal and she was talking about all the, whatever happened in Europe. I was more interested in knowing that the last time ये अपने यहाँ बिहार और यूपी में epidemic कब आया था, और was it a pandemic or was it an epidemic, and what happened then? If she could shed some light on. Pandemic का सच तो भारत से ओरिजिनेट होके कॉलेरा होने की वो चीजें जो थी वो सब 20वीं शताब्दी के मध्य तक खत्म हो गई पूरी तरह से। जो होते थे वो एपिडेमिक ही होते थे। और ऐसे अगर हम देखेंगे ना तो 2-3 बिहार के जो ऑकेजन्स है वो एग्जैक्ट ईयर में अभी आपको नहीं बता पाऊंगी, बट जब I think 1850s or something, 1950s, 57-58 में जो बहुत बड़े फ्लड्स के बाद महामारी फैली थी, बहुत भयानक जो फ्लड्स हुए थे। दूसरा ये जो अगर हम देखेंगे कि सूरत में जो प्लेग की महामारी फिर से शुरू हो गई थी अर्थक्वेक के बाद। in Bihar and UP only. I mean, और सब नहीं, जगह मैं तो कह ठीक रही है हूँ कि इस तरह के स्थानीय स्तर के जो है, और यूपी में भी एक मैं आपको बताऊं, एक है उसका कुंभ मेला के बाद का एक I think so, there's something 1957 वगैरह में 57-58 का ही डेट का एक एपिडेमिक का एक है, लेकिन वो जल्दी ही कंट्रोल हो गया क्योंकि लोगों को मालूम था कि ये हो रहा है। उसका असर जो है हाइजीन पे और स्वच्छता
वगैरह पे आई थिंक 1970s वगैरह तक ये बड़ा कॉन्शियसनेस रहता था कि यू नो हाउ टू बी यू नो क्लेanलीनेस की तरफ और सफाई की तरफ और ये सो दिस वाज वन ये दूसरा इससे रिलेटेड मैं ये जानना चाह रहा था मैम कि इसका मतलब अपने पास हिस्ट्री ऑफ फेमीन के ऊपर तो बहुत काम हुआ है और बहुत तरह का ये है तो क्या फेमीन के टाइम में भी कभी कोई इस तरह का रिलेटेड टू फेमीन कोई एपिडेमिक आया था क्या प्लेग वगैरह या कॉलरा हाँ, या प्लेग कोई का भी लोग ये in बोलते North हैं ना India? कि जो 19वीं शताब्दी के अंत में जो प्लेग की महामारी भारत में फैली उसके जी। जस्ट पहले बहुत बड़ा अकाल पड़ा था हाँ और वही लिटरली 1870 मतलब वाला ये जो था हाँ तो उसमें क्या हो गया था कि लोग ऑलरेडी इतने मतलब कुपोषित लोगों की संख्या इतनी ज्यादा थी जी और जी बाद जी में प्लेग लो एपिडेमिक immunity। जो फैला तो वो एक हमारे पास एकदम ठोस उसका उदाहरण है लेकिन अच्छा। उसके बाद में भी 1930 के दशक में भी एक बार ऐसे ही एक कोई मतलब एक के बाद एक 1930 होने में। का 30 में एक 30 से मतलब वही रफली 30 के मतलब दशक में 20s और कभी 30s के डेकेड्स हाँ में उसके बीच में कभी फिर इसके से एक स्रोत बार मिलते वही हैं क्या इसके सोर्सेज हाँ कहाँ हाँ मिलते बहुत हैं बहुत अच्छी तरह से मिलते हैं किस रिकॉर्ड में जैसे ये का नेशनल आर्काइव्स में नहीं एंड दूसरी बात ये है ना कि इसका विभिन्न हमारे तो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के जो ईयरली डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो भी धीरे धीरे कुछ कुछ जगहों में पब्लिश हो रहे हैं दूसरा बिकॉज भारत का संबंध 1947 तक देखे तो ब्रिटेन से था जी तो हाँ ब्रिटिश एलपीजे मेडिकल फाइल्स में होगा हाँ ब्रिटिश लेजिस्लेटिव मेडिकल जर्नल्स में इसको बहुत अधिक मात्रा में चर्चा में लाते थे और करीब करीब हर इश्यू में ये भारत के हेल्थ संबंधित आर्टिकल्स नहीं मैं प्राइमरी सोर्स का सोच रहा था कि कहाँ पे नेशनल आर्काइव्स में एलपीजे फाइल उसमें मिलेगा फिर हमारी जो इंस्टीट्यूट ऑफ जुडिशियल फाइल्स वगैरह सैनिटरी एंड हाइजीन की जो है फिर एपिडेमियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट के फाइल्स जो है उसमें मिल जाता है भारत सरकार की ओर से भी ये डेटा बहुत अच्छे से डॉक्यूमेंट हो रहा है ये क्या था और ये कॉलरा था प्लेग था क्या था ये राकेश मेरा ज्यादा फोकस इंडिया Ratna, में sorry, कॉलेरा I'm sorry, कॉलेरा के ma'am. I ऊपर think No. Ratna, the time is up, and Arun sir will also. Sir, thank you very much. Thank you. I appreciate. Ratna, I have one Rakesh question. बोल रहा हूँ, sir. No, you can ask. मैम एक क्वेश्चन है मैम So this is going to be the last question. हेलो मेरा भी एक क्वेश्चन है रत्ना Yes, Maladi. एक कोई और पहले उसको पूछ लेने दो नो रूपेश प्रजापति कौन है अच्छा बिंदा पहले हम पूछ लेते हैं आपसे जरूर 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 Repeat the questions जो पूछा जा चुका है कृपया करके उसको रिपीट नहीं करेंगे रुपेश जी ये एक रिसर्च स्कॉलर जो किसी तरह से बिंदा आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहा है अभी उसने एक क्वेश्चन हमको भेजा आपसे पूछने को कि भारत में अस्पृश्यता की भावना के पीछे क्या महामारियों की भी भावना रही है नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं अस्पृश्यता भारत में प्राचीन काल से चली आ रही है हाँ। और महामारी के समय अस्पृश्यों की स्थिति बहुत खराब हो रही थी बहुत ज्यादा खराब हो रही थी क्योंकि थे तो अस्पृश्य तो जो भी सुविधाएं हो सकती थी वो सब अपर कास्ट को मिलती थी और इसीलिए तो सावित्रीबाई फुले को अस्पृश्यों के खास मतलब इट वाज ओपन टू ऑल बट जो हॉस्पिटल उसने खोले और अपने बेटे से वहां इलाज करवाया उसमें अधिकतर तो दलितों का इलाज होता था क्योंकि दलितों को पूना के सम्राट जगह में कहीं इलाज की कोई गुंजाइश ही नहीं थी लेकिन अस्पृश्यता का महामारी नहीं होने का एक अगर हम लोग देखेंगे कि दिस वाज द इंडियन वे ऑफ कंट्रोलिंग स्प्रेड ऑफ एपिडेमिक्स तो ये बिल्कुल गलत है ऐसा कुछ नहीं था अस्पृश्यता अपनी जगह में अपने पॉलिटिक्स की वजह से थी अपनी इकोनॉमिक्स की वजह से थी और महामारियों में अस्पृश्यों की स्थिति बहुत खराब हो गई थी बस अस्पृश्यता का महामारी से कोई लेना देना नहीं था ये महामारी is different. Mahavari is that the women they get the monthly menstruation. That is Mahavari. महामारी और महामारी दोनों दो चीज है हाँ महामारियों की बात हो रही है हाँ वही मैं कह रही हूँ उसकी अस्पृश्यता अलग है वो सभी वर्णों में और सभी जातियों में है वो अस्पृश्यता लेकिन महामारी और अस्पृश्यता अगर हम कहेंगे तो कोई संबंध नहीं तो इसका थैंक यू वृंदा मैम मेरा क्वेश्चन है हेलो हाँ
जी, एक फॉर्मूला है जो 1-1/R0 होता है, जो 67% का लगभग होता है, और जिसे हम हर्ड इम्यूनिटी या थ्रेशोल्ड इम्यूनिटी कहा जाता है। तो R0 जहाँ पर 1 के बराबर है, तो मैम ये कहा जाता है कि ये जो हर्ड इम्यूनिटी पैदा करेगा ये फॉर्मूला, ये कोरोना वायरस को इंड कर सकता है, शायद ये WHO का कहना है। तो ये वही हमको जानना है मैम कि ये जो फॉर्मूला है वो कैसे। नहीं, एकदम ही मैं इसकी कोई अभिज्ञता नहीं रखती नहीं, मैं हूँ। इसका जवाब दे देता हूँ मैम, इफ यू वांट, मतलब हाँ, अगर sure. आप कहें तो। और इसको जो कहा गया कि मैं जो अनलॉक भी किया गया है मैम, इसी कारण देख करके यही हर्ड इम्यूनिटी को मतलब कि पैदा करने के लिए, हर्ड इम्यूनिटी पैदा करने के लिए इसको मतलब कि मैं इस अनलॉक पे किया गया कुछ है। नहीं नहीं, बोल ये पाऊंगी, मैं एकदम ही उसकी शायद ये expert विषयांतर है। R0 जो है, R0 इज अ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ द स्प्रेड ऑफ द पैंडेमिक। और R0 जो है ना, R वर्सेस 0 कह लीजिए, उससे जितना ज्यादा R0 होगा 1 2 3 4, उतना ही उसका स्प्रेड उतनी तेजी से बढ़ेगा। तो R0 जो है ये एक स्टैटिस्टिकल टूल है जो कि बताता है कि महामारी कितने स्पीड से बढ़ेगी। तो ये R0 के जितना नजदीक रहेगा उतना कम फैलेगा, और जितना ज्यादा रहेगा, R1 है, R2 है, R3 है, R4 है, तो ये उतने स्पीड से बढ़ेगा। तो ये एक आपका सवाल है। दूसरा, आपने हर्ड इम्यूनिटी के बारे में जो पूछा, हर्ड Yes, sir. इम्यूनिटी वो उसको है भी कि बिल्कुल जब एक बार जब ये महामारी फैल जाएगा और सपोज कीजिए कि 50 या 60% ऑफ द पॉपुलेशन में ये आ जाएगा, तो उसके बाद जब ये स्प्रेड करेगा तो नेचुरली ये उस आदमी में स्प्रेड करेगा जिसमें इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है, जो पहले ही उससे संक्रमित हो चुका है। तो इस तरह से जब चारों तरफ से अगर उस वायरस को ऐसे लोग घेर लेंगे जिनको कि पहले से इम्यून हो चुके हैं, तो वो बाकी के पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट कर देंगे। चूंकि उनके पास इम्यूनिटी है, तो वो जो है ना, चारों तरफ से समझ लीजिए कि बीच में वायरस है और चारों तरफ से हर्ड इम्यूनिटी वाले लोगों ने घेर रखा है, तो वो उसका स्प्रेड उस हिसाब से रुक जाता है। तो ऐसा मानते हैं ये लोग। पिछले इसके स्टेटिस्टिकल डिटेल्स है जिसमें ये पता चलता है कि अगर 60% या 70% ऑफ द पॉपुलेशन को अगर ये हो चुका है पहले, तो वो हर्ड इम्यूनिटी हो जाएगा। तो उसके बाद बाकी के 30 या 40% पॉपुलेशन ये प्रोटेक्टेड हो जाएंगे नेचुरली। लेकिन अभी कोविड-19 के केस में दिस इज येट इन द फ्यूचर एंड दिस इज नॉट देयर। सर, तो ये अनलॉक जो कर दिया गया है सर, अभी यही देख करके किया गया है क्या? अब ये अनलॉक का जो है ना, द चॉइस इज बिटवीन द या डेविल फिर एंड द डीप सी। इकोनॉमिक, हाँ, ये इकोनॉमिक है, इसका वायरस से कोई ये नहीं है। थोड़ा वायरस तो विषयांतर हो रहा है। हाँ जी। Okay. We are diverting from the topic. Please Right. ask questions Okay, thank you. relevant to the topic. I Sure. think that is all for today. No more questions now. Sir, kindly deliver the vote of thanks. Sir, you are muted. Respected Professor Binda Paranjpe, our principal Professor S.P. Sahi, member of organizing committee, Dr. Ratna Amrit, program coordinator, teachers, distinguished guests, students, and those students who are present on Facebook. I express my heartfelt gratitude to Professor Binda Paranjpe, Department of History, Banaras Hindu University, for a very informative and beautiful lecture on learning from past epidemics, a historical overview. Professor Binda Paranjpe explained that the facts related to epidemics comprehensively and very lucidly. We are very much thankful to you, madam. My sincere thanks to our dynamic principal, Professor S.P. Sahi. He has been proactive and instrumental in arranging such lectures and other academic activities in a well-coordinated manner. I am thankful to all members of organizing committee and Dr. Ratna Amrit, program coordinator and compeer of this program, for effective discharge of her responsibility, and she has conducted this session very beautifully. I express my sincere thanks to Professor Mala Singh, who
played a pivotal role behind the curtain in arranging this lecture. I am very much thankful to teachers of my college, distinguished guests, students, and media persons for their active participation. Again, I am thankful to the organizing committee for giving me this opportunity to propose vote of thanks. Thank you all. Thank you all participants. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much.